Welcome to the mathematics class. Today I will going to continue the chapter quadrilaterals, and I am going to solve some of the questions of exercise 8.1 because 8.1 has 12 questions and all are time taking questions. Okay, so I will take only 7-8 questions today, and next questions will be solved in the next video. First question of exercise number 8.1, you have book, तो book में देखिए, the angle of quadrilaterals are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Okay, so this question, ये जो question है आपने पहले भी क्लासेस में, जो लोअर क्लासेस है उसमें सॉल्व किया हुआ है, and this is based on the angle sum property of quadrilateral. Okay, so यहाँ पर let the angles, suppose ये ABCD quadrilateral है, इस quadrilateral में मैं मान लेता हूँ कि एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है. So ये वाला एंगल जो है 3x का ले लेते हैं, ये 5x का ले लेते हैं और ये 7x का लिया और ये ले लिया हमने 13x का. ठीक है, so therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 180 degree. Sorry, 360 degree. 360 degree. Angle sum property of the quadrilateral. Now this is 3x plus 5x plus 7x plus 13x is equal to 360. So इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 30x is equal to 360. Therefore x is equal to, divide करेंगे तो आएगा 12 degree. Okay. Now angle A जो है वो है आपका 3x. So 3 into 12 that is 36 degree. Angle B जो है वो है 5x. तो 5 into 12 degree is equal to हो गया 60 degree. Angle C is equal to है 7x. So ये हो गया 7 into 12 degree. ठीक है, सॉरी ये 9x है यहाँ पर, सॉरी 9x है तो 30 आएगा. ठीक है, तो एंगल C is 9x not 7x. This is 9x. So 9 into 12 that is 108 degrees, and angle, therefore angle D is equal to हो जाएगा 12x 13x. So 13 into 12 that is 156 degree. So these are all the angles of quadrilateral ABCDs. Okay, it's very simple. Now question number 2. If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So it is given a parallelogram, इसके diagonals बराबर हैं. हमको प्रूव करना है कि वो जो parallelogram है वो actually rectangle है. Okay, so इसमें करना क्या है आपको, अगर आपको rectangle प्रूव करना है तो you draw a rectangle. आप rectangle बना लीजिए और suppose करिए कि ये parallelogram है. So let ABCD is a parallelogram in which the diagonals are equal. ये जो diagonal है AC and BD are equal, and we have to prove that this parallelogram is a rectangle. Okay, so what is given in parallelogram ABCD? Diagonal AC is equal to BD, और हमें प्रूव करना है, to prove ABCD is a rectangle. ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप सोचना पड़ेगा आपको. What is the definition of rectangle? A parallelogram in which one angle is 90 degree, then the parallelogram is a rectangle. तो हमें इस पैरेललोग्राम में एक एंगल कोई 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा, या एंगल B या एंगल C या D या A
ये एक एंगल को ही आपको 90 डिग्री प्रूव करना होगा। अब देखिए वो कैसे एंगल, सपोज हम एंगल बी और एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव करना चाहें, ठीक है, कोई एक एंगल करना है लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल्स लेंगे, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, ये मैं ले रहा हूं ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल ले रहा हूं आपका एंगल डीसीबी। ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे एंगल बी और पूरा एंगल सी, तो दोनों का सम अगर 180 है तो दोनों 90 के होंगे और हेंस वी कैन प्रूव द पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो अब देखिए इन ट्रायंगल प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ओके, अब देखिए इसमें AB इज इक्वल टू DC के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, नाउ BC इज इक्वल टू CB, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। और एक चीज और, AC इज इक्वल टू DB, ये गिवन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में AC इज इक्वल टू BD, AC is equal to BD, it is given this question. So इस तरीके से ट्रायंगल ABC will become congruent to triangle DCB by using SSS, ठीक है। तो ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore एंगल ABC is equal to एंगल DCB। अब देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, since ABCD is a parallelogram and adjacent angles of parallelogram या consecutive angle of parallelogram are supplementary। मैं सप्लीमेंट्री दे रहा हूं, आगे आप TARY लगा दीजिएगा। पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इससे मिलेगा एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको नीचे केवल इतना लिखना है, आप पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड हेंस नाउ क्वेश्चन नंबर 3, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ओके, सो हमें रोम्बस प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम बनाएंगे रोम्बस, बट आई विल कंसीडर इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। सो ये हो गया आपका, मैंने बनाया रोम्बस, ठीक है, ABCD, in which this is the diagonal BD intersecting diagonal AC bisecting, ये पॉइंट O है, ये बराबर है इसके और BO बराबर है OD के, and these angles, all angles are of 90 degrees, ठीक है। तो राइट एंगल पे दोनों ट्रायंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, AO इज इक्वल टू OC है, BO इज इक्वल टू OD है,
and you have to prove that this is a rhombus. So rhombus प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसको rhombus की जो डेफिनेशन होती है, rhombus की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो एक वो एक rhombus होता है। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स ये दोनों बराबर हो जाए तो ये एक rhombus होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में ये दोनों साइड्स को बराबर प्रूव करेंगे या ये दोनों साइड्स को बराबर प्रूव करेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये एक rhombus होगा। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर। तो हमें पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है और पैरेलल है। तो ये देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल AODB एंड ट्राइंगल DOC। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं, ठीक है, बटरफ्लाई दिख रही है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको लिखा हुआ है कि AO इज इक्वल टू CO है, गिवन है क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा है OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। और एक चीज चाहिए और वो देखिए आप, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। देयरफॉर आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल AOB विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय यूजिंग SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, समझ में आया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग SAS। तो हमें ये मिल गया कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, CBCT, corresponding part of the congruent triangle. Similarly, this angle 1 will become angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. ये भी CBCT से, ये देखिए एंगल 1A is equal to angle C यहां पर। But these are alternate इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए आप, ये Z बन रहा है, यहां देखिए ऐसा N बन रहा है, तो ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये कैसे हैं? एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। Therefore AB will be parallel to DC. Therefore AB will be parallel to CD. Now ABCD is a parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपने इक्वल प्रूव कर दी है, ये इसके बराबर प्रूव कर दी है, और दोनों पैरेलल भी प्रूव कर दिया आपने। देयरफॉर ये क्या हो गया? अपोजिट साइड्स, किसी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपको एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो एडजेसेंट ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए जगह थोड़ी कम है, मैं थोड़ा मिटाना चाहूंगा इसको। नाउ स्टूडेंट, इन ट्रायंगल अब लेंगे AOB एंड COB, ये दोनों ट्रायंगल्स ले रहे हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ट्रायंगल COB, यहां पर देखिए AO इज इक्वल टू OC है, AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन है। ठीक है, और ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। चाहे तो आप ये भी AB, नहीं ये तो इसके बराबर है ना, तो यही लेना पड़ेगा आपको, ये कॉमन है, ये एंगल बराबर है, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका ये जो BO है OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में,
therefore triangle AOB become congruent to triangle COB by using SAS. Therefore we can say that AB is equal to CB by using CPCT. Therefore आपने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अभी पिछले वाला जो इसमें क्या ऊपर हमने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, और अभी आपने प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। if in a parallelogram या in a parallelogram, ऐसा लिखें, in a parallelogram if adjacent sides are equal, then it is a rhombus. Then it is a rhombus. ठीक है? Therefore ABCD is a rhombus and hence proved. ठीक है? आपको समझ में आया? Now let's see next question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. So आपको ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर है, it is given that it is a square, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है? इक्वल भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है? तो अब देखिए, गिवन है स्क्वायर, सो आई विल मेक अ स्क्वायर हियर। ओके, ये देखिए, ये बन गया आपका स्क्वायर। आप स्केल से बनाइएगा, मेरे पास तो अभी है नहीं स्केल। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। In this we have to prove that AC is equal to BD first. ये स्क्वायर है, इसमें हमको प्रूव करना है कि AC BD के बराबर है, और दूसरा प्रूव करना है AO is equal to OC and BO is equal to OD, और तीसरी चीज प्रूव करनी है कि ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। सो स्क्वायर में डायगोनल्स को हमें प्रूव करना है कि बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले आप स्क्वायर की डेफिनेशन सोचिए। द स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है? स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD is also a rectangle and therefore their diagonals are equal. तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे ABCD is a square. ABCD is a square and square is a rectangle. ठीक है? Square is always a rectangle. ठीक है? whose adjacent sides are equal. ठीक है? तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD is also a rectangle. ठीक है? And the diagonals of rectangle are equal, and the diagonals of rectangle are equal. This is the property of rectangle. Therefore we can say AC is equal to BD. ये आपका फर्स्ट ये प्रूव हो गया कि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि AO is equal to OC है और BO is equal to OD है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बटरफ्लाई। ये देखिए, ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है? तो कैसे कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए देखिए ध्यान से, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये तो ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि देखिए, ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगी। बाय यूजिंग ASA वी कैन प्रूव द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है?
या एक काम और भी कर सकते हैं आप, इसमें ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन उसमें एंगल साइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सही रहेगा कि ए बी इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल ए एंगल सी के बराबर, इसलिए एंगल जहां पर एंगल ए है वहां पर एंगल सी लिखना होगा, और एंगल ओ के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल बी की जगह पे एंगल डी, तो एंगल जहां बी लिखा है वहां पे डी लिखना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए एंगल ये हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, एडजेसेंट साइड भी बराबर होंगे, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, तो ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, therefore triangle AOB will be congruent to triangle COD by using angle side angle. Therefore आप लिख सकते हैं AO is equal to CO by using CPCT and OB is equal to OD by using CPCT. Now ये भी प्रूव हो गया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया इसके, और ये वाला प्रूव हो गया इसके बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि यहां पर एंगल 90 डिग्री भी है, तो अपन क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। अब देखिए यहां पर AB किसके बराबर है, AD के। AB इज इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये वाली साइड आप देख रहे हैं, ये वाली साइड BO, OB इज इक्वल टू OD, अभी आपने प्रूव किया है यहां पर, एंड AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, दोनों में ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है। देयरफॉर दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore angle 1 is equal to 90 डिग्री। जब दो बराबर एंगल्स का सम 180 है तो उनमें दोनों एंगल 90 के होंगे। So in this way we have proved that this is a given square, diagonals are equal, they are bisecting each other at 90 degree. So these angles are 90 degree। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, show that if diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। अब यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या करना होगा, यहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करना है, लेकिन बनाना स्क्वायर, बिकॉज हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। सो दिस इज ABCD is a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other at 90 degree। मतलब AO is equal to OC है और BO is equal to OD है, and these angles are of 90 degree। ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, वहां O लिखा, मैंने लिखा इसलिए नहीं लिखा वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD है, इसमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD, AO इज इक्वल टू OC and OB is equal to OD, and also angle
O is 90 डिग्री, कहीं पर भी एंगल O 90 डिग्री का है। These are the things given. ABCD is a quadrilateral and you have to prove that ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। फिर पैरेललोग्राम को फिर राइट एंगल 90 डिग्री प्रूव करके रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा, और रेक्टेंगल प्रूव करने के बाद एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। इट्स अ क्वाइट बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए, सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना कैसे है ये पहले देखिए, ठीक है। सो ये देखिए क्या करना है हमें, ये ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बटरफ्लाई, ये देखिए बटरफ्लाई, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बहुत आसान है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दोनों 90 डिग्री के हैं। Therefore the triangles are congruent, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं AO is equal to CO, given है, ठीक है। एंगल O is equal to angle O is equal to 90 degrees and third is OB is equal to OD, given है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। Therefore triangle AOB will be congruent to triangle COD by using SAS. Hence AB, सबसे पहला काम AB is equal to CD, ये देखिए AB is equal to CD by using CPCT, that is corresponding part of the congruent triangle, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला एंगल 1 will be equal to angle 2, therefore angle 1 is equal to angle 2, ये भी CPCT से, ठीक है। अब but these are the angle, but angle 1 and angle 2 are alternate interior angles। आप देख रहे हैं, ये देखिए n बन रहा है, ये ऐसा n बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर है। Therefore this is parallel to this, therefore हम लिख सकते हैं AB is parallel to CD, therefore अब देखिए AB is equal to CD and AB is parallel to CD, therefore ABCD is a parallelogram। एक पार्ट ये हो गया कि क्वाड्रिलेटरल से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, इन दोनों ट्राइंगल को हम प्रूव करेंगे कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, ठीक है। सो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, इनको कॉन्ग्रुएंट में लिख दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। ये देखिए AB इज इक्वल टू CD, अभी आपने प्रूव किया, ये साइड कॉमन है, और AC इज इक्वल टू BD गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि इसको S से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। आप कर लीजिएगा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये पूरा एंगल B इस पूरे एंगल C के बराबर हो जाएगा, बट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम है और इनके दोनों एंगल्स का जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। Therefore we can say कि एंगल B is equal to 90 डिग्री। Therefore we can say that ABCD is a rectangle। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया और पैरेललोग्राम से इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्राइंगल, मैं थोड़ी जगह बना ले रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं, इसको इतनी जगह में हो जाएगा। ट्राइंगल ले रहा हूं AOB एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बहुत आसान है। AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू CO गिवन है,
इसके बाद देखिए ये कॉमन है और ये दोनों 90-90 के हैं, ठीक है। ये ले सकते हैं अपन, या ये ले सकते हैं, ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये एंगल लेना पड़ेगा, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और ये साइड कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB, यहां पे COB लिखना है, OB इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो ये कॉमन साइड है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB by using SAS, therefore AB is equal to CB। अब रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, therefore ABCD is a square, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को मैंने प्रूव किया बटरफ्लाई से, क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को फिर प्रूव किया हमने, ये रेक्टेंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का लेके, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये पूरे बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया SSS से। इससे एंगल B और एंगल C दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर हो गए, और इनका सम 180 है तो दोनों 90-90 होंगे, तो इससे रेक्टेंगल प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो वो एक रेक्टेंगल होता है, तो इससे प्रूव हो गया कि यहाँ रेक्टेंगल है। अब इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से प्रूव हो गया कि AB इज इक्वल टू CB है। तो अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं देन इट इज अ स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। नाउ सर सी द क्वेश्चन नंबर 6, diagonals AC of parallelogram ABCD bisect angle A. See the figure is given here. Show that angle it bisects angle C also, and second is ABCD is a rhombus, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रूव करना है rhombus, तो हम एक rhombus बनाएंगे, rhombus लाइक बनाएंगे, क्योंकि rhombus इसको स्केल से आप बनाएंगे, क्योंकि मैं जो हूं ये तो फ्री हैंड बना रहा हूं। सो ABCD, यहां पर लिखा हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यहां पर दिया है। और आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है और ये एक रोम्बस है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, ठीक है। सो पैरेललोग्राम है और उसमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। तो एक काम तो हमें ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब देखिए यहां पे आपने ABC लिया है, यहां पे आपको लेना पड़ेगा ADC, क्योंकि एंगल A बराबर है ADC। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है, ये साइड बराबर होनी चाहिए इसके, ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल, ये साइड कॉमन है, तो ये तो क्राइटेरिया कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ADC और ABC ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो ओके, ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम होने से क्या होगा कि इसको प्रूव करना होगा, किससे प्रूव करें, हाँ ये ले सकते हैं अपन, एंगल B जो है ना, एंगल D के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, तो एंगल साइड से इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर आप देखिए इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये गिवन है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, opposite angles of parallelogram because ABCD is parallelogram given, and AC is equal to AC, this is common, ठीक है। वो होनी क्या साइड चाहिए, जो दोनों एंगल बराबर है उसी के करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, तो वो है,
Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC by using angle psi. Hence, we can say that angle 3 is equal to angle 4. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. ये हो गया आपका CPCT से, और इसके बाद आप लिख सकते हैं AB is equal to AD. ये देखिए AB is equal to AD. AB is equal to AD. अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि therefore we can say that AC bisects angle C and ABCD is a rhombus. क्यों rhombus है? Because पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. सो ये हो गया प्रूफ इसका. ठीक है. लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 and the last question for today. Okay, ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ठीक है, ये rhombus है. इसी का कन्वर्स क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसी का कन्वर्स है. ये देखिए ये एक rhombus बना रहा हूं मैं. ज्यादा टिल्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया है. ये एक rhombus है. ठीक है. सो एंगल ABCD आपको प्रूव करना है कि अगर AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है. और ये लास्ट बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो BD है ये इन दोनों को और ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. तो उसमें करना कुछ नहीं है. हमें करना क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे अपन. जैसे ये ट्राइंगल लिया मैंने ADC और ABC. इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए. तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इससे ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. ठीक है. यहां CAD नहीं लीजिएगा लेकिन ADC लीजिएगा. इससे लेने से क्या होगा कि हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूव करना. तो एंगल A की जगह पर एंगल A ही आना चाहिए. इस ट्राइंगल का एंगल A की जगह पे, और एंगल C की जगह आना चाहिए. और अपोजिट रोम्बस है तो अपोजिट एंगल C बराबर होंगे. ठीक है. चलिए अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए ये रोम्बस है. देयरफॉर इसमें हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है. ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. इसके बाद देखिए ये वाला साइड इसके बराबर हो गया. अब ये साइड भी इसके बराबर होगा. देयरफॉर लिख सकते हैं आप इसमें BC इज इक्वल टू DC. ये भी रोम्बस है इसलिए दोनों बराबर होंगे. और बीच में देखिए AC इज इक्वल टू AC जो कि कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle ADC by using SSS. ठीक है. Therefore we can say angle 1 is equal to angle 2. Angle A के बराबर है. Angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by using CPCT. Hence diagonal AC bisects angle A as well as angle C. आप लिख सकते हैं hence diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ये हो गया आपका आधा पोर्शन. अब आपको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल ये जो BD है ये एंगल D को भी और एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है. तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे ये ट्राइंगल लेंगे ये लेंगे DAB एंड DCB. तो ट्राइंगल आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग, मैं छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट लिख रहा हूं. ठीक है. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ये लेंगे DAB. एंगल DAB
will be congruent to triangle, sorry, DAB and DCB, triangle DCB, ठीक है, by using S इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. Therefore we can say that angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. Therefore angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8 by using CPCT. ठीक है, ये हिस्सा आपको करना है. अब इसके बाद इसमें लिखना है आपको कि BD bisects angle D as well as angle B. Okay, hence proved. समझ में आ गया आपको? इस तरीके से मैंने अभी 7 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस और हैं, वो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस के साथ में. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके.